जब भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अटैक करेगा, वायरस अटैक करेगा, so these are the cells which would become active and they will increase in number. Now अगर हम बहुत डिटेल में जाए वाइट ब्लड सेल्स के, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स लाइक बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है, आपको पता ही होगा कि जब बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी अटैक करता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं. तो बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी बनाना. लेकिन दूसरी तरफ जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका काम होता है कि अगर आपका कोई सेल में वायरस ने अटैक किया है, नाउ वायरस विल यूज द मशीनरी ऑफ द सेल. बैक्टीरिया का काम है वो सेल को इन्फेक्ट करेगा, लाइस करेगा, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा. बट वायरस इट विल स्टे इनसाइड द सेल, इट विल कंज्यूम ऑल द मटेरियल ऑफ योर सेल एंड देयर वुड बी, यू कैन नॉट किल अ वायरस बिकॉज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन दैट यू वुड टेक वुड किल योर सेल. आपका बैक्टीरिया नहीं मरेगा, आपका वायरस नहीं मरेगा, आपका सेल मरेगा, क्योंकि आपका वायरस सेल के अंदर ही बैठा हुआ है. तो उन टाइप ऑफ वायरसेस को मारने के लिए यू हैव स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर टी लिम्फोसाइट्स. सो दे आर दैट इज सेल mediated killing we say. They use to kill the cell which are being infected by the viruses. So that's why there are no antiviral as such, but there are antibiotics. Because bacteria can be killed because they reside outside. Virus cannot be killed because they are present inside the cell. They are using the machinery of your cell where they are eating your cell. So basically we are talking about कि your cells have different shape, different structure because they are specialized for different function. Okay, now if we talk about the size of the cell, the simple cell which is present, which is of very small size, it is the mycoplasma. Mycoplasma is just 0.3 micrometer. Now mycoplasma is the cell which is basically infect your animal cell. If you look under the microscope, the mycoplasma would just look like a shiny dot. If you stain it with some dye, it will look like a shiny dot inside the cell, and you can say that your cell is being infected by the mycoplasma. And whenever you do like grow cells in vitro, these kind of organisms, they do attack the animal cell. Then next is the bacteria. Bacteria has like 3 to 5 micrometer in diameter. Then another PPLOs, they are another kind of prokaryotic cell which are, that is pleuro pneumonia like organisms. And they are also very small in size. See, they are just 0.1 micrometer in its size. And viruses, they are even smaller. That's why they are able to reside inside the human cell. And then the largest egg is the cell is that of an ostrich. So next, this is the typical eukaryotic cell. Now this is the typical eukaryotic cell which is 10 to 20 micrometer. You can look into the like it is 20 micrometer, whereas the bacteria it is 1 to 2 micrometer. That's why the bacteria are able to attack your animal cell and infect it, because they are so small in size that they can enter into your cell, because which is very huge, that is 10 to 20 micrometer in diameter. Viruses are even smaller than bacteria, but the viruses, they are basically on the verge of living and non-living. And why they are on the verge of living and non-living is because they are not living when they are present outside, but whenever they come into the contact with the host, they become living. So that's why they are on the verge of living and non-living. So that's the basic difference between the virus and the bacteria. And now another term is bacteria. Apart from its genomic DNA, they have another kind of DNA that is circular, which we call as plasmids. Now we have been able to exploit the plasmids in a way that we can introduce the foreign DNA into the bacteria and we can grow it. How we can do it is because like you have a bacteria, the genomic DNA, this is the scattered DNA, and this is the genomic DNA. Except from the genomic DNA, they have other kind of DNA as well, which is circular.
which we call as plasmids. अब प्लाज्मिड्स को हमने कैसे एक्सप्लॉइट किया है कि आपका कोई भी फॉरेन डीएनए, अगर हमें कुछ भी फॉरेन प्रोटीन का आपका फंक्शन पता करना है तो आपने क्या किया, उस प्रोटीन को जो डीएनए कोड करता है आपने उस डीएनए को इस प्लाज्मिड में डाल दिया। पहले आपने प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाला, आपने आपके ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स आजकल मिलते हैं, तो इसके अंदर आपने, ये आपका प्रमोटर होगा यहाँ पे बैक्टीरिया का, यहाँ पे आपने अपना फॉरेन डीएनए डाला। आपने फॉरेन डीएनए को डाल के इसको दोबारा बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कराया। अब जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा प्लाज्मिड भी ग्रो करेगा। आप फिर इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर सकते हैं और जो भी आपका फॉरेन डीएनए है वो भी आपका ग्रो करेगा और उसको फिर आप आइसोलेट करके आप उससे प्रोटीन बना सकते हैं, उसका फंक्शन देख सकते हैं। सो दैट कैन बी डन बिकॉज हमको पता है सेंट्रल डॉगमा ये कहता है कि आपका डीएनए है, डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। अगर हमारे पास डीएनए है तो हम उससे प्रोटीन बना सकते हैं और उसको हम फंक्शन वगैरह सब देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी ये प्लाज्मिड्स हैं जो आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, हमने उनकी एडवांटेज लेके हम उनको आजकल अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं उनको। सो दीज आर नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया बट दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर अस। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का भी अलग अलग डिफरेंट साइजेस में आपके बैक्टीरिया आते हैं। आपकी बैक्टीरिया की भी डिफरेंट शेप है। यू हैव बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पिरुलम। जो बैसिलस है वो रॉड शेप्ड होता है, कोकस इज बेसिकली योर सर्कुलर, विब्रियो इज कॉमा शेप्ड एंड दिस इज योर स्पाइरल शेप्ड। तो बैक्टीरिया डिफरेंट वैरायटी के भी हैं और उनकी डिफरेंट शेप भी है डिपेंडिंग ऑन क्या उनका होस्ट क्या है जिन पे वो अटैक करते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफर इसमें करते हैं कि सेल आपके प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है। और आपके ये जो प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया, इनके अंदर भी आपकी सेल वॉल होती है। तो इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का वो कैसा होता है, जैसे हमारे एनिमल सेल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिर्फ। अगर हम सिर्फ एनिमल सेल की बात करें तो उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायोलेयर। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब आपकी हर चीज नहीं अंदर जा सकती, ओनली कुछ चीजें अंदर जा सकती है इनसाइड द सेल, कुछ नहीं जा सकती। फॉर सर्टेन थिंग्स यू नीड द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। तो होती कैसी है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से होती है, फॉस्फोलिपिड बायोलेयर इस तरह से आपकी प्रेजेंट होती है एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी है। इसके अंदर जो टेल है वो आपकी हाइड्रोफोबिक है, जो आपका हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मीन्स, फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव, तो आपका वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक इज योर वाटर रिपेलिंग। तो जो टेल है वो वाटर रिपेलिंग है। तो अगर आपका कोई भी वाटर सॉल्यूबल चीज सेल के अंदर जानी है तो उसके लिए आपके स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो इस तरीके से इम्बेडेड होते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स बोलते हैं। अब आपका एनिमल सेल जो है उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। लेकिन जो आपका यही आपका प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर आपकी जो मेम्ब्रेन है आउटर, वो 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड आता है आपकी सेल वॉल एंड देन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो आपकी सेल वॉल होती है इट इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अब आपके प्लांट सेल हो गया या बैक्टीरिया हो गया, कंपोजिशन यही है आपकी। अब आपके जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है इसके अंदर अब आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे आपका जो बैक्टीरिया है इट इज क्लासिफाइड एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव।
If it is gram positive, that means it will take up the gram stain. Gram stain, it is just a composition of crystal violet and iodine. तो अगर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के अंदर टिकोइक एसिड होता है and it is thick, then it will retain that stain and that's why the bacteria would be gram positive. Whereas अगर जो सेल वॉल है आपकी, उसकी जो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है उसमें टिकोइक एसिड नहीं है, तो आपकी थिन होगी लेयर, तो वो आपका जो स्टेन है जो क्रिस्टल वॉयलेट और जिसके अंदर आयोडीन है वो उसे रिटेन नहीं कर पाएगा, तो दैट्स व्हाई इट वुड बिकम ग्राम नेगेटिव. तो दिस बैक्टीरिया जो आपका ग्राम स्टेन ले लेगा दैट आर ग्राम पॉजिटिव एंड द बैक्टीरिया विच वोंट टेक अप योर ग्राम स्टेन दैट वुड बी ग्राम नेगेटिव. जो इसके अंदर दिखाया हुआ है कि आपके देयर आर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव आर द वन दैट विल टेक अप द ग्राम स्टेन एंड वेयर एज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट वोंट टेक अप द ग्राम स्टेन. नाउ ग्लाइकोकैलिक्स, इट कैन बी योर, अगर आपका ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो थिक है तो वो आपका कैप्सूल टाइप बनाएगा, और अगर यही आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स जो आपका प्रेजेंट है वो अगर लूजली आपके प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स कोट, तो वो एक स्लाइम सी लेयर बनाएगा. इसके अलावा आपके मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम मीजोजोम्स बोलते हैं. दे आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन that are known as the mesosomes. तो आपके ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं. तो mesosomes are infoldings of the plasma membrane. अब mesosomes की भी आपकी 3 कैटेगरीज हैं. You have tubules, lamellae and vesicles. Now vesicles कैसे होंगे आप आपके, जैसे ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स कोट हो गया, ये आपकी सेल वॉल हो गई. दिस इज योर डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें कि ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये आपकी सेल वॉल है और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होगी अंदर इस तरीके से, ये आपकी वेसिकल्स होगी. अब इनका क्या क्या फंक्शन हो सकता है, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होंगे, जो कि आपके दे कैन हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म और इट कैन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. तो ये वेसिकल्स का स्ट्रक्चर होगा. अब ट्यूब्यूल्स कैसे होंगे, इट्स ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली टी शेप्ड. तो आपके ये है इस तरीके से, तो ये टी शेप्ड आपके ट्यूब्यूल्स होंगे. तो दीज आर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग. सारे ये आपके मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स ही है, पर ये आपके डिफरेंट तरीके के हैं. कुछ वेसिकल्स हैं, कुछ ये ट्यूब्यूल्स हैं, एंड थर्ड वन इज योर लैमिलेई. लैमिलेई दे आर प्रेजेंट इन बेसिकली योर क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब आपके पास थैलेकॉइड होते हैं, थैलेकॉइड से ये आपके ग्रेना बने हुए हैं. अब एक ग्रेना जो है वो दूसरे ग्रेना से, दीज आर कनेक्टेड विद योर स्ट्रोमा लैमिलाई. तो दीज आर लैमिलर स्ट्रक्चर. तो ये आपके टी शेप्ड होते हैं, ये आपके डिस्क शेप्ड होते हैं, डिस्क की तरह ऐसे प्रेजेंट होते हैं. और ये आपके राउंड इनफोल्डिंग्स इनसाइड द सिंपल वेसिकुलर इनफोल्डिंग होती है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जिसका आपका काम है एंजाइम्स. इन सभी आपके एंजाइम्स कंटेन करते हैं एंड दे हैव द फंक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन एज वेल. सो यू हैव मेसोसोम्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड द लैमेली. देन इसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल का क्या मतलब होता है. बैक्टीरियल सेल्स इफ दे आर मोटाइल मीन्स दे आर एबल टू मूव and non-motile means they are not able to move. Now what is the special structure which would be helping the bacteria to move? वो आपका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला. अब फ्लैजिला जो होता है, अगर आपका बैक्टीरिया मोटाइल है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ फ्लैजिला, और ये बना होता है आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन से.
और अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होंगे। द स्ट्रक्चर इज हैविंग 3 पार्ट्स। पहला है फिलामेंट, हुक एंड योर बेसल बॉडी। तो ये किस तरीके से होंगे आपके, ये आपका इस तरीके से तो फिलामेंट होगा ऊपर, उसके बाद ये फिलामेंट हुक जंक्शन बोल लो, ऐसे तरीके का होगा। तो दिस वुड बी योर फिलामेंट, दिस वुड बी फिलामेंट हुक जंक्शन, ये आपका हुक होगा। एंड यहाँ से फिर आपके बेसल बॉडी शुरू हो जाएगी। इसके अंदर आपके पी प्रोटीन, पी लूप, ये सब तरीके के स्ट्रक्चर आ जाएंगे, बट दिस वुड बी योर बेसल बॉडी। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बताऊंगी ये पी एल और ये सब कन्फर्मेशन, बट सिर्फ बताने के लिए कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि जो विच इज़ हेल्पिंग द बैक्टीरिया टू मूव। इट इज़ बिकॉज आपका फ्लैजिला है, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है, फिलामेंट, हुक और आपकी बेसल बॉडी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इज एबल टू मूव। यह आपका बेसिक वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है, यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स होगी, सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी बेसल बॉडी है ये, और ये उसका आउटर एक्सटेंशन है विच इज़ हेल्पिंग इट टू मूव। इसके अलावा आपके पिलाई और फिम्ब्री, ये भी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनका इतना काम मूवमेंट में नहीं होता, बल्कि इनका काम होता है कि जैसे किसी रॉक के ऊपर दे आर बैक्टीरिया जब प्रेजेंट है तो उनको अच्छे से बैक्टीरिया के ऊपर होल्ड रह सके, बैक्टीरिया रॉक के ऊपर, तो उनका ये तरीके का काम होता है, उनका काम मूवमेंट में नहीं होता है।